फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। For terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to hold them, to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. आपको बता दें कि दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उस पूरे मामले को लेकर बोलते हुए नजर आए और जिस तरीके से तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण किया गया भारत में, उस मामले पर भी बोलते हुए नजर आए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत को लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आए। सिंधु जल समझौता को रोका गया, तमाम मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। जिस तरीके से कई घंटे तक दिल्ली में बैठक चली, बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की गई और उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहते नजर आए कि 48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा और तमाम मुद्दों पर बोलते नजर आए। तहव्वुर राणा का भी जिक्र करते हुए नजर आए। सिंधु जल समझौता किया गया रद्द, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। अटारी बॉर्डर को बंद किया गया और साथ ही कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से हमला हुआ उस पूरे मामले पर उनकी तरफ से कहा गया है। विदेश मंत्रालय की सीसीएस की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सिंधु जल समझौता किया गया रद्द, उनकी तरफ से कहा गया। कई घंटे बैठक चली, बैठक के अंदर चर्चा की गई और उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अटारी बॉर्डर को बंद किया गया, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है।
बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आतंकी हमला हुआ जिस तरीके से कल, और उसके बाद जो है कई लोगों की मौत हुई इस हमले में और कई लोग घायल हो गए, और उसके बाद आज बैठक की गई और बैठक के अंदर चर्चा की गई और उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और आपको बता दें कि तमाम मुद्दों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हुए नजर आए। विदेश मंत्रालय की CCS की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। सिंधु जल समझौता किया गया रद्द, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद किया गया, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया और साथ ही कहा गया कि अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और वहीं जो है अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। 48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। आज बैठक के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अभी थोड़ी देर पहले और कहते हुए नजर आए इस पूरे मामले पर कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तानी है उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। सिंधु जल समझौता को रोका गया, उनकी तरफ से पूरे मामले को लेकर अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश मंत्रालय की CCS की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, कई घंटे बैठक चली और बैठक में पूरे मामले पर जो है चर्चा की गई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए विदेश मंत्रालय। कहा गया पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद और साथ ही अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया जो अटारी बॉर्डर है वे बंद कर दिया गया है। 48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। सिंधु जल समझौता को रोका गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया 48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। जिस तरीके से कल आतंकी हमला किया गया जम्मू कश्मीर पर और उसके बाद ये बैठक हुई, आज कई बैठकें हुई हैं और ये दिल्ली में बैठक हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए एडिटर इन चीफ नासिर जुड़ गए हैं। नासिर, देखिए जिस तरीके से अब भारत सरकार की तरफ से कड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? प्रिया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा था। हमारे देश के बेगुनाह नागरिकों को मारा गया आतंकवादियों की तरफ से और इसमें पूरी तरह से जिस तरह के इनपुट मिल रहे थे, जिस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, उसमें साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वेशन है, संलिप्तता है। और अब अभी थोड़ी देर पहले CCS की बैठक खत्म हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के विदेश मंत्री मौजूद थे। और जिस तरह के इम्कान लग रहे थे, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये फैसले हो सकते हैं, वैसा ही हुआ है। सिंधु जल समझौते को खत्म करने का फैसला हुआ है। पाकिस्तानी दूतावास को अगले 1 हफ्ते के अंदर बंद किया जाएगा और पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं उनको 1 हफ्ते में भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उनको कह दिया गया है कि 1 हफ्ते में भारत छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी नागरिक जो इस वक्त भारत में हैं, अलग अलग जगहों से बहुत से लोगों की रिश्तेदारियां या कहीं किसी और कार्यक्रम में आए हैं, तो उन सभी को भी 48 घंटे में भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी एक कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान पर कूटनीतिक लिहाज से या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी समझौते रहते हैं दो देशों की वजह से लिहाज से अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारी बातों का जिक्र यहां पर करते नजर आए, लेकिन 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को और 48 घंटे या 1 हफ्ते के अंदर राजनयिकों को भी भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान का वीजा रद्द किया जाएगा। कड़ा फैसला भारत सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद और जिस तरह का गुस्सा पूरे देश में था, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी। देश के लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि सारे जो भी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ फिलहाल उन सबको खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो सेना को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सेना को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सिंधु जल समझौता खत्म किया गया। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक नुकसान हो सकता है सिंधु जल समझौता, क्योंकि भारत की तरफ से जो पानी जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। सेनाओं को, अलग अलग सेनाओं को, चाहे वायुसेना की बात की जाए, चाहे हमारे थल सेना की बात की जाए, उन सभी को अलर्ट पर रखा गया है कि वो अलर्ट रहें। अटारी सीमा को बंद करने का फैसला लिया गया है और पाकिस्तानी राजनयिक, यानी एक तरीके से अभी तक का ये सबसे बड़ा फैसला है। आप अंदाजा लगाइए कि पुलवामा के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जिस तरह के, लेकिन उस वक्त भी राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। पाकिस्तान को जो पूरा पानी मिलता है वो भारत से जाता है। और इसके अलावा कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे
कि एक तरफ ये फैसला हुआ है, दूसरी तरफ जो पर्यटक जम्मू कश्मीर में पहलगाम में मारे गए थे उनके परिवारों के बीच सब पहुंच रहे हैं, पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले विनय नरवाल का भी अंतिम संस्कार किया गया था। और हम एक और तस्वीर दिखाएंगे, अपनी टीम से कहूंगा पीसीआर से कि वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं, पर्यटकों की जो जान गई है। और इसी तरह की एक मांग पूरी देश से हो रही थी। हालांकि अभी ये तो रिश्ते खत्म किए गए पाकिस्तान से, लेकिन अभी आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने बेगुनाहों का खून बहाया है, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है, उनका भी अभी हिसाब होना है, उनका भी अभी हिसाब होना है। और जिस तरह से आज का, तो इससे और भी बहुत सारे इम्कान नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कल एक खबर आ रही है कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सारी पार्टियों को बुलाया गया है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से ये बात भी आई थी कि इस वक्त जरूरत है कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ जाएं। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर विचार करें कि किस तरह से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो हो सकता है कि कल सर्वदलीय बैठक के बाद कोई और बड़ा फैसला लिया जाए। जिस तरह से देखिए, जिस तरह के हालात अभी इस वक्त नजर आ रहे हैं, और इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उससे लगता है कि कुछ और बड़ा होने जा रहा है। क्या किसी तरह से पाकिस्तान पर फिर से अटैक किया जाएगा, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और क्या उसके बाद किसी तरह के युद्ध की आशंकाएं, संभावनाएं हो सकती है। बहुत सारी चीजें सोचने के लिए। लेकिन जो 5 बड़े फैसले लिए गए उसमें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, और इसके साथ ही पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भी बंद किया गया है। अगले कुछ दिन में उनको भी भारत छोड़ने के, जो पाकिस्तानी राजनयिक है, भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं, उनको कहा गया है। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में इस बात को लेकर इस वक्त एक मांग उठ रही है कि इस वक्त जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाने की, और फिलहाल ये कड़े कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज भी बैठक हुई और कई घंटे बैठक के अंदर चर्चा की गई, और उसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसी बीच जो आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, कल फिर से बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई है। सीएस की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली और तमाम मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है और पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद होगा, और साथ ही कहा गया है कोई भी पाकिस्तानी या भारत नहीं आ सकता है, और अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। और साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द किया गया है, और साथ ही आपको बता दें कि जो भी पाकिस्तानी भारत में है फिलहाल 48 घंटे के अंदर अंदर उनको पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया है। CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn
from both high commissions. 5. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahavur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे मामले को वो लेकर बोलते हुए नजर आए और आज कई घंटे बैठक चली और कल भी सर्वदलीय की बैठक होनी है। सेनाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं कि जब जितने भी सेना के जवान हैं सभी अब अलर्ट मोड पर रहेंगे। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, कल बैठक होगी और बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। सेनाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और आपको बता दें कि कल बैठक बुलाई गई है, कल बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। आज भी बैठक हुई और कई घंटे बैठक के अंदर चर्चा की गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विदेश मंत्रालय की तरफ से और 5 बड़े आदेश दिए गए हैं और कल भी जो है अब सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई है। कल बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें कि कल बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। सेनाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी सेना के जवान हैं अब सभी अलर्ट मोड पर रहेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर अटैक देखने को मिला आतंकवादियों का, उसके बाद बैठक लगातार होती हुई नजर आ रही है। आज भी बैठक हुई और अब कल भी बैठक होगी, कल बैठक बुलाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। आज बैठक के अंदर 5 बड़े आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, जो भी पाकिस्तानी है वे भारत नहीं आ सकते हैं, वीजा रद्द कर दिए गए हैं और जो भी पाकिस्तानी भारत रहते हैं उनको 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे के अंदर अंदर उनको भारत छोड़ना पड़ेगा और साथ ही आपको बता दें कि कल सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई है। सेनाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रिटायर्ड कर्नल टीपी सिंह जुड़ गए हैं। देखिए सर, जिस तरीके से ये हादसा देखने को मिला है, बड़ा हादसा हुआ है। हमारे देश के जो है कई नागरिकों पर हमला किया गया, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए और अब इसी बीच जो है बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप उन फैसलों को लेकर? जी देखिए, पहले तो मेरा नाम कर्नल टीपी त्यागी है और मैं वीर चक्र प्राप्त एक ऑफिसर हूँ। अब जो आज फैसले लिए गए हैं, कई फैसले हैं, मगर उसमें 2-3 फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक कभी सोचा भी नहीं गया। पहला फैसला तो ये है कि जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में एक इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन किया गया था और जिसमें पाकिस्तान को उसके अधिकार से अधिक दे दी गई था पानी, वो इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान में ये स्थिति आ जाएगी कि गर्मियों के इस समय में उसे पीने को पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है वो ये है कि जो हमारी एम्बेसी तो नहीं होती, जो हमारे हाई कमिश्नर होते हैं, तो हमारे हाई कमिश्नर को वापस किया जाएगा और जो स्टाफ है उसको लिमिट करके 30 तक किया जाएगा। और एक और फैसला जो लिया गया है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, यानी कि अटारी बॉर्डर, जिसके ऊपर रोजाना शाम को हजारों लोगों की भीड़ दोनों तरफ से लगती है, उस अटारी बॉर्डर को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। और फाइनली आम आदमी को तकलीफ देने वाला जो एक फैसला है कि 48 घंटे में जो पाकिस्तान के लोग यहाँ हैं उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना होगा। अब कल्पना कीजिए कि ज्यादातर पाकिस्तान के लोग गरीबी होने की वजह से यहाँ के अस्पतालों में आते हैं अपना इलाज कराने। अब चाहे वो आईसीयू में हो या वो ओपीडी में हो, उन्हें यहाँ से 48 घंटे में छोड़ना होगा।
पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कम किया जाएगा। यानी कि अगर इसे देखा जाए तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस तरह के डिसीजन आज तक कभी नहीं लिए गए, और ये डिसीजन तो सिर्फ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है मिलिट्री डिसीजंस का, और मिलिट्री डिसीजंस में चूंकि ज्यादा बातें बताई नहीं जा सकती, तो सिर्फ ये कह दिया गया है कि ऑल द आर्मीज, दैट इज नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, हैव बीन पुट ऑन एक्सट्रीम अलर्ट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक शिकंजा कसा गया है इस पहलगाम के हमले के बाद में, वो बड़ा इफेक्टिव है, और इसका रिजल्ट हमें बहुत कुछ कर्नल टीपी त्यागी जी, इसका मतलब जिस तरह से आपने कहा कि सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, तो ये संभावना है कि किसी तरह के युद्ध का भी हाल हमारे सामने आ सकता है, हालात बन सकते हैं? देखिए, ये तो नहीं है कि हम पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट युद्ध कर दें, और ना ही हमें उस युद्ध करने की जरूरत है, लेकिन जो पाकिस्तान के लॉन्च पैड है, जो पीओके में है, जिनके कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास कुछ समय पहले उन्हें नष्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आज है। आज हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर भी है और हमारे पास राफेल भी है। हम अपने एरिया में रहते हुए स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के अंतर्गत उन्हें नष्ट कर सकते हैं, और उनको नष्ट करने में कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कैरेक्टर को पूरी दुनिया जानती है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, किसी देश ने चूं भी नहीं की थी। लिहाजा अब हमारा एक इस किस्म का एक एक्शन हो सकता है, बट दिस इज ओनली फॉर वो जो लॉन्च पैड है पीओके में, उन्हें नष्ट करने के लिए। ऑल आउट वार आई डोंट थिंक नाइदर इट इज नेसेसरी नॉर आई होप इट विल बी एक्टिवेटेड। बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से। एक तो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सेनाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए, और अब से थोड़ी देर पहले सीसीएस की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं, जो कार्रवाई की गई है, उसकी जानकारी दी गई। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, रोका गया है। पाकिस्तान में, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद होगा, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। पाकिस्तानी राजनयिकों को यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 1 हफ्ते में भारत छोड़ दें। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। और एक और बड़ा फैसला कि पाकिस्तानी नागरिकों के पाकिस्तान को लेकर जो भी वीजा हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, और अगले फैसले तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा नहीं दिया जाएगा भारत का। अटारी और बाघा बॉर्डर बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर यह कुछ बड़ी कार्रवाइयां की गई। फिलहाल पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर दिए गए हैं, चाहे वो व्यापार के हों, चाहे वो जनता के, आवाम के इधर से उधर जाने के हों। तो एक बड़ी खबर आज की, जिस तरह से पूरे देश में पुलवामा पहलगाम अटैक को लेकर, पुलवामा अटैक का इसलिए जिक्र कि पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन उस वक्त भी ये जो कड़े फैसले थे नहीं हुए थे। चाहे वो जल समझौते की बात हो, चाहे वो पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के अल्टीमेटम की बात हो, चाहे वो पाकिस्तानी दूतावास को भारत से हटाने की बात हो, खत्म करने की बात हो, पाकिस्तानी राजनयिकों को
भारत छोड़ने के निर्देश, अल्टीमेटम की बात हो, अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर को लेकर कोई फैसला हो, लेकिन इस कायराना हरकत के बाद, इस आतंकवादियों के इस जघन्य अपराध के बाद भारत सरकार ने एक फैसला लिया, और वो बड़ा फैसला है कि पाकिस्तानियों के भारत आने पर रोक। अगले फैसले तक पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा। खत्म किया गया है पाकिस्तान, जो भारत से पानी जाता है उस पर बड़ी निर्भरता है पाकिस्तान की। एक बड़ा फैसला हुआ, इसके लग रहे थे इम्कान, इसकी संभावनाएं लग रही थी कि ऐसा हो सकता है। इसके साथ एक और बड़ा फैसला कि पाकिस्तान का दूतावास भारत में नहीं रहेगा। अगले एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी राजनयिकों को अल्टीमेटम दिया गया कि भारत छोड़ दें, और इसके साथ ही जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में मौजूद है, चाहे कोई घूमने के लिए आया हो, चाहे कोई किसी रिश्तेदारी में आया हो, यह हो सकता है कि कहीं अस्पतालों में इलाज के लिए आए हो, उन सभी को भी यह अल्टीमेटम दिया गया है कि 48 घंटे में भारत छोड़ दिया जाए। अगले आदेश तक पाकिस्तान के नागरिकों को कोई वीजा नहीं दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। ये वो फैसले हैं पाकिस्तान। और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला कि सेनाओं को, तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद और भी क्या कुछ हो सकता है, कुछ और फैसले हो सकते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सीसीएस की बैठक हुई, और उस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीएस की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी गई। और बड़ा फैसला यह है कि सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। बड़ा फैसला यह है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 48 घंटे में भारत छोड़ दें। बड़ा फैसला यह है कि सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बड़ा फैसला यह है कि भारत में पाकिस्तान का दूतावास नहीं रहेगा। राजनयिकों को अगले एक हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। और बड़ा फैसला है कि अगले आदेश तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीजा नहीं दिया जाए।